हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमारी स्टैंडर्ड 12 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 12th साइंस। यस, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। यस, चैप्टर नंबर 6। वैसे तो ये सिलेबस में इस साल नए सिलेबस में इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो बचा है वो कई सारे सम्स ऐसे ट्रिकी है और कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो ચાલો મોડું ના કરીએ, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણા નવા ચેપ્ટર નંબર 6 એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ્સ. ઓકે, હવે એક વસ્તુ તમને કહેવા માંગુ છું કે આ ચેપ્ટરના જે ટેક્સ્ટ બુકના એમસીક્યુઝ છે, પહેલી આ જે તમારી આ ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં મને સૌથી વધારે જો સારામાં સારા એમસીક્યુઝ લાગ્યા હોય તો એ આ ચેપ્ટરના છે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા છે. એમ તો બીજા બધા ચેપ્ટર્સમાં આપ્યા છે પણ બહુ જ ઇઝી લેવલના છે, પણ આ એક જ ચેપ્ટર છે જેમાં ટેક્સ્ટ બુકના सम्स જ થોડા ઘણા કન્સેપ્ચ્યુઅલ બેઝ ને ટ્રિક બેઝ છે. તો એ જ શરૂઆતમાં મેં આજે લીધા છે, નહીં તો હું દર વખતે બહુ લાસ્ટમાં લઉં છું. દરેક તમે અત્યાર સુધીના સેશન્સ જોઈને આવ્યા હશો, અત્યાર સુધીના તમે જે વિડીયોઝ જોઈને આવ્યા હશો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ટેક્સ્ટ બુકના सम्स સર છેલ્લે કરાવે છે, કેમ કે બહુ ઇઝી હોય છે અને છેલ્લે તમને આવડી પણ જાય એમ છે. પણ આ ચેપ્ટર એવું છે જેમાં મારે ફર્સ્ટ જે તમારું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં મારે પહેલે જ મૂકવા પડ્યા છે, કેમ કે આ ચેપ્ટરના ટેક્સ્ટ બુકના જ એમસીક્યુઝ બહુ સરસ છે. બીજા પણ મારા ઘણા બધા એમસીક્યુઝ છે, એ પણ જોડે જોડે લઈશું. તો ખાસ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. પહેલામાં પહેલું તો તમને કન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર હોવા જોઈએ, જે મારો પહેલો ટ્રાય છે. દરેક એમસીક્યુ સેશન સ્ટાર્ટ કરું છું એના પહેલાં તમને હું રેકમેન્ડ કરું છું કે વન શોટ સિરીઝ યા કન્સેપ્ચ્યુઅલ તમે ક્યાંથી પણ જો તમને તમારી જોડે નોટ્સ બનાવેલી હોય તો પહેલાં એ નોટ્સ જોડે રાખો, કેમ કે આ ચેપ્ટર્સમાં જે ઇઝી લેવલના ટોપિક્સ છે, યસ ફરીથી સાંભળો, ઇઝી લેવલના જે ટોપિક્સ હતા, જે એરર એપ્રોક્સિમેશન્સ, ટેન્જન્ટ, નોર્મલ લાઇન, એંગલ્સ, ઓકે, એ બધું ડિલીટ થઈ ગયું છે. જેમાંથી એમસીક્યુઝ બહુ ઇઝી આવતા હતા એ બધું જ ડિલીટ થઈ ગયું છે. હવે જે ટોપિક્સ રહી ગયા છે, રેટ ઓફ ચેન્જ, દેન મિનિમમ મેક્સિમમ વેલ્યુ, ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ, આમાંથી જ તમારા એમસીક્યુઝ ને સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ બનશે. તો થોડુંક મજાના તમને ક્વેશ્ચન્સ મળશે આ વખતે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ, બહુ ટાઈમ ના લઈએ. હવે ફરીથી ધ રેટ ઓફ ધ ચેન્જ ઓફ ધ એરિયા, યસ, ટીબી યાની હમારા ટેક્સ્ટ બુક सम्स ઓફ ધ એરિયા ઓફ સર્કલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રેડિયસ આર. યસ, હવે રેટ હોય ને, રેટ તો એમાં માની લો કે તમને ટાઈમ રિલેટેડ હોય તો dx બાય dt થાય કોઈ બી ક્વોન્ટિટી. અગર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોઈ બીજો વેરિયેબલ પણ કહી શકે, dx અપોન સમથિંગ dy યા dx અપોન dr. સો રેટ એટલે એટલો મિનિંગ, એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેશન છે એટલે ડેરિવેશન તો આવશે dx બાય dt, dx બાય dy. બટ અહીંયા સમજી લેવાનું, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ધ એરિયા ઓફ સર્કલ એટલે કે પાય આર સ્ક્વેર ઇઝ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રેડિયસ. અહીંયા da બાય dr છે, નોટ da બાય dt. સો હા, चेन रूल पहला r નું થશે, સો દેટ ઇઝ 2r, देन r का अगेन होगा dr बाय dr. સો dr બાય dr એમ તો તમે અહીંયા જોવા જાઓ તો 2πr જ લખાય, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ r જ છે એટલે. ઓકે, ડાયરેક્ટ પણ તમે કરશો તો પણ ચાલશે, બટ ફર્સ્ટ एमसीक्यू છે એટલે હું કરાવું છું. એટ r ઇક્વલ્સ ટુ 6, ચલો इसकी जगह पे 6, સો 6 2 ઝા 12 પાય. બટ યુનિટ નથી આપ્યો, ઘણીવાર યુનિટ પણ તમને આપે છે જોડે જોડે, બટ અહીંયા તો ઇઝી છે, યુનિટની કઈ વસ્તુ જરૂર છે નહીં. સો 12 પાય સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. પાયની વેલ્યુ આપી નથી, સીધી મૂકી દેવાની છે. સિમ્પલ સમ. અત્યારે મેં કોઈ જ ટેક્સ્ટ બુકના सम्सમાં મેં કોઈ જ ક્યાંય જાતનું करेक्शन કે નવી કોઈ વસ્તુ નાખી નથી. જે છે बैठा टेक्स्ट बुक ना सम्स में लूँ छूँ. ओके, वो समझ में आ जाएगा. बाकी आपके टीचर्स जो कोई होंगे, बोर्ड्स एग्जाम्स के पेपर सेटर होंगे, कुछ ना कुछ इसमें मसाला डालते रहेंगे वो लोग. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोडक्ट इज गिवन बाय समथिंग दिस फंक्शंस. द मार्जिनल रेवेन्यू, यस पढ़े हैं ये हम, टेक्स्ट बुक का ही कंसेप्ट है. मार्जिनल रेवेन्यू एक सम्स आपके एक्सरसाइज में है. मार्जिनल रेवेन्यू इज रेवेन्यू का अगर आप प्रोडक्ट के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करते हो तो दैट इज गिव इज मार्जिनल रेवेन्यू. तो चलो dr बाई dx फाइंड करो. 3 2 ज़ा 6x. अभी डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है वो बोलना नहीं है भाई. सो कितने यूनिट्स में करना है हमको, सो x इक्वल्स टू 15, यानी कि यहाँ पे 15 डाल दियो. सो 15 6 ज़ा 90 प्लस 36, सो आंसर इज 126. डी ऑप्शन इज द आंसर. टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हो तो चेक करते जाना, ठीक है. अभी इसमें चेंजेस क्या करेंगे वो लोग, ये फंक्शन बदल देंगे, ये कोई यूनिट बदल देंगे, तो बदल गया सब, नया आ गया,
कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्चुअली रेडी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अभी वो आपको पता है। चलो एक नया आपको कंसेप्ट, वैसे तो वन शॉट में मैंने बोला हुआ है लेकिन फिर से समझा देता हूं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स असे यस ग्राफ जस्ट યુઝ્યુઅલી આવી રીતે ડ્રો કરું છું, ગ્રાફ પેપર લખવાની જરૂર નથી। ચલો ઓકે, હા 1 0 0 1 આ સમજી લો। આગળના ઘણા બધા सम्सમાં મારે જરૂર પડશે, -1 0 एंड 0 -1। इसको आप ए डैश बी डैश, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। सो आ 4 जंक्शन पॉइंट से तो जे कॉस फंक्शन से देखो अभी क्वाड्रंट वाइज कॉस साइन टेन कॉट केवी रीते डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग थाय। तो एक समझो, दिस इज कॉस काउंटर स्ट्राइक, जिसको में हम बोलते हैं काउंटर स्ट्राइक, कॉस साइन काउंटर स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक हमारी गेमिंग। अभी कॉस की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है, सो कॉस इज डिक्रीजिंग। साइन क्या है 0 to 1, सो दैट इज इंक्रीजिंग। कॉस क्या है 0 to -1, अगेन डिक्रीजिंग। 1 to 0 अगेन डिक्रीजिंग। -1 to 0 कॉस बढ़ रहा है, सो इंक्रीजिंग। 0 to -1 यस डाउन हो रहा है। 0 to 1 बढ़ रहा है, साइन क्या हो रहा है, सो -1 to 0 बढ़ रहा है। यानी कि ये वैल्यू जो है इट इज फॉर कॉस, इट इज फॉर साइन इंक्रीजिंग। कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, यस। सो अभी उस हिसाब से सारे के सारे सम्स आप कर पाओगे। હવે સિમ્પલ એંગલ છે, અહીંયા x હોય તો જ કામનું થાય, જો ડબલ એંગલ હોય તો એટલું સાયકલ તમારી મલ્ટીપ્લાય થાય। सो द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप पढ़ते हो कि ओनली लेस देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं, ओके क्रिटिकल पॉइंट नहीं याद है उसमें। सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलो कॉस है बराबर है cos 2x। अभी cos तो है लेकिन cos 2x क्या करे, तो 0 to π/2 x का है। अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 0 to 2π हो गया। यस 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 यस। चलो cos 3x अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 3π/2। डन और नॉट? डन डन डन। tan x तो होगा ही नहीं, क्योंकि tan एक ऐसा फंक्शन है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, कोई भी क्वाड्रेंट लो, और कॉड ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। अगर आप बोलोगे सर कॉस साइन की बात करें तो sec cosec, जहां पे कॉस इंक्रीजिंग है वहां पे sec डिक्रीजिंग है, जहां पे साइन इंक्रीजिंग है वहां पे cosec डिक्रीजिंग है। ऑल्टरनेटिव होगा, कॉस साइन का उल्टा sec एंड cosec होगा, जहां पे इंक्रीजिंग है वहां पे वो डिक्रीजिंग होंगे, जहां पे डिक्रीजिंग है वहां पे वो इंक्रीजिंग होगा। ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, ठीक है। चलो तो क्या आंसर आएगा अभी बताओ दो, cos x ही आएगा। आप बोलो सर ये cos 2x क्यों नहीं आ सकता, चलो सोच लो, cos 2x भी है ही सर, cos 2x भी 0 to π में है, तो 0 to π में cos भी डिक्रीज है। लेकिन मेरे भाई ये वाले पॉइंट का क्या करोगे जहां पे उसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। ओनली डिक्रीजिंग होता तो cos 2x आ सकता है, बिकॉज दिस पॉइंट इज cos 0 होगा, इसलिए फाइनल आंसर इज cos x। याद रखो स्ट्रिक्टली वर्ड અને વિધાઉટ સ્ટ્રિક્ટલી વર્ડમાં શું ડિફરન્સ છે, ઓકે। બહુ મસ્ત રીતે તમને સમજાઈ ગયું હશે હોપ। Which of the following function interval is the function given by this is strictly decreasing? चलो डेरिवेशन ही करो भाई। 100x raised to 99 plus cos x and 0। अभी ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो ऑलवेज -1 to 1 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, और ये वाला पोर्शन क्या है, ओके। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन दी आंसर x। अभी ये पॉजिटिव है x, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। जो इसने ऑप्शंस दिए उसमें से चेक करना है, आमांथी चेक करवानुं छे। x नेगेटिव होय तो ऑड पावर नेगेटिव आवशे तो डिक्रीजिंग थई शकशे, बट आ अहींया जे एवुं मने कोई लागतुं नथी कि x नेगेटिव, केम के आ तो हवे एटલું બધું કંઈ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ નહીં ને। 100 टाइम्स दिस इज माई वैल्यू, 100 टाइम्स जो वैल्यू आ रही है वो उससे ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्शन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सो यानी कि ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज है x की, तो उसमें तो ये बड़ा ही होने वाला है, यानी कि ऑलवेज फर्स्ट डेरिवेशन तो पॉजिटिव होगा ही बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। यानी कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है उसमें से ये कोई इंटरवल नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज दिस, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शंस नहीं है। यस चलो चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सम, अगेन टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट सम है। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, चलो डेरिवेशन करो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टू एक्स। यस, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन एंड एक्स कॉमन, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस टू, तो ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सो क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स ज़ीरो एंड एक्स इक्वल्स टू, सो देयर आर थ्री इंटरवल्स, कौन से, एक माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, एक ज़ीरो टू टू एंड तीसरा वाला आएगा टू टू इन्फिनिटी। सो इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, तो चलो एफ डैश माइनस वन लियो, कोई भी एक वैल्यू चेक करिए छे આપણે આમાં નાખો, तो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, सो ओवरऑल नेगेटिव, 0 to 2 0 to 2 0 to 2 में 1 लियो, सो पॉजिटिव एंड कोई भी ले लो, चलो 3, ऑब्वियसली नेगेटिव, यस क्योंकि ये माइनस नेगेटिव होगा। तो अभी उसने इंक्रीजिंग पूछा है बेटा, तो 0 to 2 इज द आंसर। यस, टेक्स्ट बुक का ही सम है, चेक कर लो चेक कर लो। चलो अगर डिक्रीजिंग पूछे तो डिक्रीजिंग माटे बे इंटरवल्स है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 2 to इन्फिनिटी, तो सी ऑप्शन ले सकते हो क्योंकि माइनस इन्फिनिटी 0 है ही नहीं, तो सी ऑप्शन था, है ना, मस्त सम। द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, अभी एमसीक्यू છે તમે સમજો, હું તો એક કામ કહું તમને ડાયરેક્ટ ઓપ્શન શીખવાડું તો બધાના ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા લઈ લો 0,5 સાથે, આનો 0,5 સાથેનો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા 2√2 સ્ક્વેર प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर, सो कितना हुआ 8 + 9 यानी 3। इसके साथ ऑप्शन से जाते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ भी जाऊंगा। सो 8 + 25, तो 25 + 8 √33। चलो इसके साथ तो 5 स्क्वायर ही होगा यानी 5, 2 के साथ यानी 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 5 होल स्क्वायर 9 √13। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस किसका आया भाई, ये 3 है, ये √33 यानी 4 एंड 5 एंड 6 के बीच में आएगा, ठीक है। ये 5, ये √13 किसके बीच में आता है 9 और 16 के बीच में यानी 3, 4, तो सबसे तो लोएस्ट तो यही हुआ, तो यही आंसर आएगा। चलो अभी प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो नियरेस्ट टू द पॉइंट, मान लो कि ये P कुछ XY है और ये हमारा A है, ठीक है। चलो PA डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, सो x - 0 होल स्क्वायर y - 5 होल स्क्वायर, ओके। सो PA स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। अभी x को सब्जेक्ट बना दो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, तो प्योर फंक्शन आपका y का आ गया। सो y स्क्वायर - 10y + 25। આ તમને લોંગ મેથડથી કરાવું છું બટ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। y સ્ક્વાयर - 8y + 25, दैट इज़ योर फर्स्ट फंक्शन। चलो अभी तो मुझे क्या चाहिए, नियरेस्ट टू यानी कि मिनिमम वैल्यू। सो f डैश y 2y - 8, f डबल डैश y, यस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 2। सो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज आवશે, कोई भी તમે क्रिटिकल पॉइंट लेशो। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेशन इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 4, ओके। नेगेटिव ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव है यानी कि ऑलवेज गिव्स मिनिमम पॉइंट, ओके। चलो उसको f ऑफ y में डालो, ओ सॉरी y इज 4, y तो 4 आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 4 दैट इज 8, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 2√2 आएगा। तो x आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। सो दिस इज योर आंसर, डन, क्लियर। सो प्रेक्टिकली वर्ड प्रॉब्लमની રીતે પણ કર્યો અને સીધી રીતે પણ તમે જઈ શકો છો। અત્યારે હું ટાઈમ આપું છું,
કેમ કે ચેપ્ટર ટ્રિકી છે એટલે, બટ તમે શાંતિથી સમજો. ચલો इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेशन करो. चलो लंबाई है थोड़ा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन का रूल 1 प्लस एक्स क्वोशंट रूल इंटू माइनस है 1 प्लस 2x. चलो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x. ओके ओपन करो. चलो नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तो कभी भी जीरो होगा ही नहीं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए. ओके चलो -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब. चलो -1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x, सो प्लस x प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब. चलो कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई? 2x क्यूब कैंसिल, 2x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, x कैंसिल होगा. चलो 2x कैंसिल यस होगा, x स्क्वायर नहीं 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 नहीं. एक कैंसिल कर दो, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल कर दो. 1 कैंसिल नहीं होता. बचा क्या? -1 प्लस 2x स्क्वायर बचा. सो તમારે क्रिटिकल पॉइंट જોઈએ છે. यस क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेशन 0, तो जब भी रैशनलाइज फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है तो ऊपर वाले का ही 0 करते हैं हम. 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1. यस सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1. चलो अभी डबल डेरिवेशन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. थोड़ा लंबा सम है भाई, पहले ही बोला मैंने, तो लंबा सम है तो अभी भी एक और बार डबल डेरिवेशन करो. चलो 1 प्लस एक्स, एक काम करता हूँ, नया पेज ही ले लेता हूँ. सॉरी, एफ डैश एक्स क्या आया भाई? 2x स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. बोले ना थोड़ा लंबा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार कर दियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो इसका क्या होगा भाई? स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू 4. चलो हाँ, इसको स्क्वायर एज इट इज इंटू 2 2 ज़ा 4x माइनस, इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है भाई क्योंकि हमको तो सिर्फ चेकिंग के लिए ही चाहिए. 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x हो गया. सिर्फ चेकिंग करना है. चलो 1 पुट करो, 1 पुट करते हैं. हाँ तो ये वाला टर्म 0, चलो कलर बदलो भाई, ये वाला टर्म 0, खत्म भाई. 1 पुट करोगे -1 पुट करो, ये वाला टर्म खत्म. अभी इसमें ही डालना है तो चलो 1 डालते हैं. सो 1, इसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, जो होगा वो इसके हिसाब से ही होगा, यानी कि 4 पॉजिटिव है. और एफ डैश -1 डालो तो -4 आएगा. बस इतना ही चेंज, बाकी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम? मिनिमम. इसके लिए क्या बोलते हैं? मैक्सिमम. ऐसा ही है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कर रहा हूँ. अभी पूछा क्या है? ओनली मिनिमम पूछा है. क्या पूछा है भाई? तो मिनिमम यानी कहाँ पे आया? x इक्वल्स टू 1 पे आया. क्या आया? x इक्वल्स टू 1 पे आया, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल दो. तो 1 माइनस 1 प्लस 1 1 1 1. सो आंसर इज 1/3. डन डन डना डन. टेक्स्ट बुक है आपके पास? चेक कर लो. चलो टेक्स्ट बुक मेरे पास भी है, देख लो. ये टेक्स्ट बुक का ही सम है. मस्त सम. ओके, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है. फिर से चलो चलो फर्स्ट डेरिवेशन. तो फर्स्ट डेरिवेशन में कैसे करोगे? पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 1/3 माइनस 1. चलो इसका करना पड़ेगा. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्या होगा? 2x माइनस 1. बराबर है कि नहीं बराबर है? चलो भाई 2x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव पावर में आएगा, -2/3, तो नीचे जाएगा तो +2/. अभी इसका क्रिटिकल पॉइंट लाना है.
तो फर्स्ट डेरिवेशन 0 पुट करते हैं तो सिर्फ ऊपर का ही 0 होगा, नीचे का तो कभी 0 ही नहीं होगा, वही तो हमारा खेल है भाई, इसलिए तो उसने वही पूछा है। सो 2x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू 1/2। डबल डेरिवेशन नहीं करे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एक ही वैल्यू मिली है तो 1/2 डाल दो, विल गेट दी आंसर 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 रेज टू 1/3। सो क्या आएगा बेटा, दिस इज माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 रेज टू 1/3। सो 3/4 क्या आया, कुछ लोचा आया क्या? चलो, सो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और ये जो है वो एब्सोल्यूट में गिनना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू 1/2 में क्या आ रहा है, 3/4 रेज टू 1/3। चलो एक सिक्योर रखो, अभी f ऑफ 0 पुट करो, सो 1 रेज टू 1/3। f ऑफ 1 पुट करो, सो ऑलरेडी 1:1/3। હવે એક વસ્તુ સમજો, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं था, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल यानी कि हम पढ़े हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करें, यहाँ पे बोला नहीं है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि हमें एब्सोल्यूट करना है, यानी एब्सोल्यूट करो तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी कम, छोटा आएगा, ये बड़ा है, सो आंसर इज 1। कई बार स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं कि भाई 1 लिखा है तो चलो 1 लिखा है, लेकिन कैसा आया वो तो समझो। अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल निकाल दूँ तो हो सकता है भाई, ओपन इंटरवल निकाल दूँ मैं तो ये आप ले भी नहीं सकोगे, तो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ही नहीं, तो क्या निकल के चलोगे, तो इसको चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे सम्स में ट्रिकीनेस आते हैं सब। चलो, द सिलिंड्रिकल टैंक, ओके, હવે इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम पर थी, હવે रेट ऑफ चेंज अगेन आया। द सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस इज समथिंग, ओके, सिलिंड्रिकल टैंक है हमारे पास, फिगर बन सकती है क्या? है क्या? है हाँ है ना भाई, होगा ही ना भाई, बोर्ड में है तो सब कुछ है। ओके, दिस इज द फिगर। चलो, क्या करना क्या है, उसकी रेडियस है भाई 10 मीटर, इट्स फिल्ड विद द वेट, ओके, विथ समथिंग 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। यहाँ के यानी कि कुछ पढ़ रहे हो आप, ये लग सब भर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ये सब भरा हुआ है वेट्स के साथ। द डेप्थ ऑफ द वेट, डेप्थ यानी हाइट, द डेप्थ ऑफ द वेट इंस्क्राइब एट द रेट ऑफ, यानी कि आपको dv/dt दिया हुआ है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी मीटर क्यूब पर आवर। सो वी हैव टू फाइंड dh/dt समथिंग मीटर पर आवर। क्वेश्चंस ने આવી રીતે ક્રેક કરો તો બેટા વોલ્યુમની ફોર્મ્યુલા શું, πr²h। હા, હવે આ બધું આવડવું જોઈએ 9th 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં, જ્યોમેટ્રી, मेजरमेंट्स, मेंसुरेशंस वाले सब। चलो, dv/dt। હવે एक वस्तु समझो, टैंक है टैंक, उसकी रेडियस तो फिक्स ही रहेगी, रेडियस तो कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है r एंड h, तो वो तो कभी बदलेगा नहीं, r²। सो यानी कि r² को कांस्टेंट रखो, सिर्फ h को dh/dt करो। ओके भाई, चलो, सो dv/dt, अभी मैं क्या बोलता हूँ, इसको 314 डिवाइड बाय 100 ही बोल दो, 3.49 लेવાનું, કેમ કે એણે એ રીતે સેટ કરી નાખ્યું છે। r² यानी कि 100, अरे वाह, मीटर में ही ना कोई यूनिट चेंज नहीं ने, नहीं। चलो, dh/dt फाइंड करना है। ओ सब कुछ कैंसिल भाई, सब कुछ कैंसिल, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर, 1 मीटर पर आवर, हो 1 मीटर पर आवर। ये ऐसे यूनिट क्यों ऐसे दिए हैं, डेप्थ में ऐसे यूनिट क्यों दिए है भाई, यही आंसर आएगा, लेकिन यूनिट में कुछ प्रॉब्लम, ये यूनिट में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द आंसर। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, स्फीयर 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 स्फीयर, यस, ये स्फीयर है। चलो, उसका रेट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसका पेट बढ़ रहा है, यानी कि dv/dt दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पेट बढ़ रहा है उसका। द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग, कुछ भी नहीं है, ये रेडियस का ही रेट फाइंड करना है। सो 4/3 πr³ dv/dt, 4/3 π एज इट इज 3r² इंटू dr/dt। चलो, 3 कैंसल, पाई
4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, ओके 3 3 9 डी आर बाई डी टी लाओ, सिंपल सम, ये नीचे जाएगा। हाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं इसमें 36 लिख के आ जाते हैं, 36 वाला भी ऑप्शन होगा, वाह बेटा ए ऑप्शन है 1/36। ओके चलो फर्स्ट डेरिवेशन 7x रेज़ टू 6 प्लस 15x स्क्वायर, तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? दिस इज इवन पावर, ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि भाई इवन पावर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डन, नहीं चेक ही करना ही नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, क्या चेक करें, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ये। द रेडियस ऑफ कोन, कोन कौन 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 है हमारे पास, है ना भाई, कौन है, ओ दिस इज प्रिज्म है, सॉरी सॉरी कौन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और शेप्स डाउनलोड नहीं किए है मैंने, चलो। सो कोन इंक्रीज एट द रेट ऑफ, कोन क्या बढ़ रहा है, कोन की रेडियस बढ़ रही है, ओके यानी एक्सपांड हो रहा है ना। द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ओ ये तो कुछ नया आया भाई, नया आया, एल्टीट्यूड चाहिए मेरे को, चलो ऐसा कुछ एल्टीट्यूड है, तो ये एल्टीट्यूड यानी डी एच बाई डी टी वो क्या है, घट रहा है, डिक्रीजिंग यानी माइनस सिंबल, याद रखो बद्दा टॉप क्वेश्चंस लीधा छे। હવે व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, कहीं पे भी स्टॉप होगा, चलो कोई एक टाइम पे वो स्टॉप होगा, उसी टाइम पे हमको फाइंड करना है, ऐसा उसको बोलते हैं। कोई एक टाइम पे उसकी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, ये फिगर में हो गया इतना। अभी क्या फाइंड करना है, लैटरल सरफेस एरिया, तो डी एस बाई डी टी फाइंड करना है, ओके तो डी एस बाई डी टी क्या, पाई आर एल, हमारे पास एल तो है नहीं, तो एल आ गया ना, ये 5 तो है ही, ओके। सो चेंज ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, तो पहले हमें डी एल बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा बेटा, आई थिंक, क्योंकि डी एल बाई डी टी तो है ही नहीं, चलो तो 2l डी एल बाई डी टी 2r इंटू डी आर बाई डी टी प्लस 2h डी एच बाई डी टी, आई थिंक कुछ हो रहा है, देख r क्या है, r क्या है, r 3, डी आर बाई डी टी इज 3 इंटू 4, ओ क्रॉस में जा रहा है भाई, h क्या है 4 एंड डी एच बाई डी टी -3 है, यानी लैटरल सरफेस एरिया का तो चेंज ही नहीं होगा, फिक्स ही रहने वाला है। सो डी एल बाई डी टी इज 0, हो तो फिर इसका डेरिवेशन अगर आप करोगे तो देख पाई आर कांस्टेंट ही ले लो आप, सिर्फ डी आर बाई डी टी ही करना है, क्यों, एल तो कांस्टेंट होगा क्योंकि डी एल बाई डी टी ही 0 है। सो पाई इंटू, पाई में ही आंसर है, तो पाई इंटू 5 डी आर बाई डी टी इज 4, सो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या सम बना है भाई, बनाने वाले को धन्यवाद, जिसने भी बनाया, मैंने बनाया किसी ने बनाया अभी याद नहीं है मैंने, क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने बनाया था ये सब। यस बराबर है मेरा आंसर, सही है। ओके इट इज इंक्रीजिंग ऑन विच, तो अगेन चलो डेरिवेशन x प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू 1, ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन, -x -2 प्लस 1, चलो बेटा ये तो कभी भी 0 नहीं होएगा, इसका ही 0 होगा, तो x इक्वल्स टू -1, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो दो ही इंटरवल बनेंगे, -∞ टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। चलो इसमें -2 डाल के देखो तो +2 यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, और इसमें 0 डाल के देखो तो नेगेटिव ही आएगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, तो -∞ टू -1 इज दी ऑप्शन। ये तो नहीं आएगा, पूरा रियल नंबर तो है ही नहीं, -1 थी તમારું ક્રિટિકલ પોઈન્ટ થાય છે, આ પણ ના આવે કેમ કે ડિક્રીઝિંગ છે, r+ તો नहीं ले सकते, ओके ओके ये तो पढ़े हुए हो, a cos x प्लस b sin x, इसका हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे तय करते हैं, ऐसे तय करते हैं हम, डन डन डन। तो 3² + 4² यानी
25 से √25, तो मिनिमम -5, मैक्सिमम +5। क्या पूछा है? मिनिमम, तो -5। सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज 12, यानी कि x और y दो नंबर लेते हैं, उसका आंसर टोटल 12 है। दस मिनिमम सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x + 1/y फाइंड करना है। तो टेक्स्ट बुक के पैटर्न का ही सम है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करेंगे। सो 12 - x, ठीक है। एलसीएम ले लो 12 - x + x, सो 12/x × 12 - x। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन करो, चलो। सो -12 समथिंग स्क्वायर, ओके। अभी इसको आपको करना है, तो 12x - x², इसका अलग से करना पड़ेगा, 12 - 2x, ठीक है। डबल डेरिवेशन भी कर दियो मेरे भाई। ये -12 को छोड़ दो, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सो x², लेकिन सम ऑफ द रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, ये ना करो तो भी चलता है, MCQ सम है। तो डायरेक्ट 12 - 2x = 0, तो 2x = 12, तो x = 6, ऐसे ही आएगा, क्योंकि भाई सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। द मिनिमम सम कब होता है? जब मैक्सिमम आप 6 लेते हो। सो 6 ले लो, तो मिनिमम सम 1/6 + 1/6, 2/6, दैट इज 1/3, ऐसे ही होगा। डबल डेरिवेशन ना भी चेक करो तो भी चलता है इसमें। मिनिमम सम तभी होगा ना जब आप वैल्यू मैक्सिमम ले लो रेसिप्रोकल में। ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, f(x), चलो f'(x) 1 - 1/x², डबल डेरिवेशन ले ही लो। इसका क्या आता है? -2/x³। चलो इसको 0 पुट करो, यानी कि x² = 1, सो x = ±1। अगर आप डबल डेरिवेशन में 1 डालते हो तो पॉजिटिव आता है, अगर डबल डेरिवेशन में -1 डालते हो तो नेगेटिव। तो इसके लिए मिनिमम आता है, इसके लिए मैक्सिमम आता है। अभी क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए, यानी कि ये वाला। सो -1 फंक्शन में डाल दियो, यानी कि -2 इज द आंसर। आप बोलो सर -2 मैक्सिमम हो सकता है, ग्राफ के हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमको जो पूछा है वही करना है अभी। જે એજ કરવાનું જે આપણને માગ્યું, તમને મિનિમમ માગ્યો તો 1 1 નાખો તો 2 આન્સર આવે, ગ્રાફ જેવો આવે એ પ્રમાણે આન્સર હોય ભાઈ। ઓકે, મિનિમમ વેલ્યુ ઓફ sec x 2π/3 to 2π पाई। चलो क्लोज इंटरवल यानी कि एब्सोल्यूट ही लेना है कंपलसरी। तो हम काम करते हैं कि 2π/3 to 2π, 2π/3 यहाँ पे कुछ आएगा और पाई यहाँ पे आएगा, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो फर्स्ट डेरिवेशन sec10, उसको 0 करो, तो sec 0 या तो tan 0, तो ऐसा कैसा वैल्यू है 2π/3 से लेके पाई तक की वैल्यू 0 आए, तो sec 0 कहाँ पे होता है? ना ही होगा ना। 2π/3 थी, पाई ની વચ્ચે ક્યારે sec 0 नहीं था। आपने जो इंटरवल आप्યું છે जी, हाँ 10 होगा, 10 पाई में होगा, बस दूसरे कहीं पे भी नहीं होगा। तो फिर तो क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू लेना, डबल डेरिवेशन करना है चेक करने के लिए। sec × sec² यानी sec³, sec का अगेन sec10, ठीक है। तो अगर आप पाई वैल्यू रखते हो तो sec पाई यानी -1 आंसर आएगा, यानी नेगेटिव है तो मैक्सिमम चला गया ये तो ये वैल्यू ही नहीं है। तो डायरेक्ट चेक कर लो अभी f ऑफ 2π/3, तो sec 2π/3 कितना? sec 2π/3 यानी 2 -2, क्योंकि cos 2π/3 -1/2 है तो। और sec पाई कितना? -1, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या आएगा? -2, यानी कि एब्सोल्यूट से ही आंसर चेक होगा। इसमें तो -1 से तो आया ही नहीं कुछ भाई, वो तो मैक्सिमम में चला गया। डन। चलो tan 1x - x
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 - 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये कोई भी वैल्यू लो ऑलवेज डिक्रीजिंग ही आएगा, कोई भी वैल्यू लो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है, तो कोई भी आप ले लो, सो डिक्रीजिंग इन ऑलवेज आर, ठीक है, डिक्रीजिंग इन ऑलवेज आर ही आएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू ले लो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। हो ये मॉड्यूलस फंक्शन ओपन करवानु खेल छे, यस। चलो पहले तो फंक्शन पहले बनाओ, पहले फंक्शन बनाओ। 2 to 4 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसे बनता है भाई, ऐसे बनता है, ऐसे। सो 2x - 4 - 3x + 12, यस। सो -x + 8, ये क्या आया, फंक्शन आया भाई। सो अभी इसका डेरिवेशन, हाँ तो भाई लेस देन ही है, तो लेस देन है यानी कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग 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 इज दी आंसर। डन छे भाई, डन छे। चलो अगर इंटरवल बदल दे यहाँ पे 4 to इन्फिनिटिव कर दे तो वो उस हिसाब से मॉड्यूलस ओपन करना है, ठीक है। द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाँ तो बहुत इजी समझे, फर्स्ट डेरिवेशन 2x + 4, डबल डेरिवेशन अपन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही आएगा एमसीक्यू में, तो ये इजी पड़े। ऑलवेज मिनिमम कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो x ની, क्रिटिकल पॉइंट x = -2 मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम पॉइंट અને वैल्यू में दोनों में फ़र्क है। अगर पॉइंट पूछे तो ये डायरेक्ट आंसर, अगर वैल्यू पूछे तो f ऑफ -2 इज दी आंसर, याद रखो। ओके 4 - 8 + 5, सो आंसर इज 1। डन, सो सी ऑप्शन इज दी आंसर। तो मैक्सिमम वैल्यू, और यही तो पढ़े हो, a² + b² -2 प्लस, यानी कि a क्या है 5, a दिस इज b, सो -13 to 13 पॉजिटिव मैक्सिमम, सो +13 इज दी आंसर। ये गोखिन नाखो एमसीक्यू माटे। द कोन इज विथ द हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस, अरे बाप रे, हाइट इज डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि 2r जितना है, यानी कि हाइट कांस्टेंट है। द डायमीटर ऑफ बेस ओके इज एक्सपांडिंग इन वॉल्यूम एट द रेट ऑफ, यानी कि dv/dt जे આપ્યું છે 50 cm³/s। इफ द बेस इज एरिया, ओ हो यानी कि πr² दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सम भाई। द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि dr/dt फाइंड करવાનું છે। તમે કહેશો સર આટલા લાંબા सम्स આવી શકે છે? अरे भाई कहीं भी આવી શકે છે। आप सिर्फ गुजरात बोर्ड या CBSE बोर्ड उसमें थोड़ी पढ़ रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें इस लेवल के सम्स आते हैं। હું અહીંયા તમને બધા જ લેવલના सम्स લઉં છું, બધી प्रैक्टिस कराऊँ છું। अभी इसमें लोचा क्या था भाई, ये सेंटीमीटर³ में है, ये मीटर में है, तो भाई इसको सेंटीमीटर में 3, 4 और सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में तो ऐसे होगा। डन चलो, सो dv/dt, चलो फॉर्मूला क्या है भाई 1/3। 1 फॉर्मूला भूली गया तो काम नहीं था कशु भाई, फॉर्मूला तो आवड़वी જોઈએ ને। 10th સ્ટાન્ડર્ડ में તમે सरफेस एरिया ने वॉल्यूम भणी गया छो, ओके भाई, ओके चलो। सो सॉरी ये क्या लिखा मैंने, dv/dt तो बाद में आएगा, सिंपल वॉल्यूम। सो dv/dt इज इक्वल्स टू, वो भी बाद में करते हैं, ये h को कन्वर्ट कर दो r² × 2r એવું કન્વર્ટ કરી દો। सो 2π/3 × r³। चलो dv/dt इज इक्वल्स टू 2π/3 कांस्टेंट 3r² × dr/dt। डन चलो, सो 2π/3 3 कैंसल है भाई,
अभी आर સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું મૂકીએ સમજો, આર સ્ક્વેરની જગ્યાએ આ રહેવું, તમે આમ મૂકી શકો છો, આ રહ્યું તમારું આર સ્ક્વેર. સો 1 10,000 अपॉन पाई, 10,000 अपॉन पाई, आर स्क्वायर डायरेक्ट मूकी दो ना. एंड डी आर बाई डी टी वो तो फाइंड करना है. एंड डी वी बाई डी टी क्या है भाई 50. चलो पाई पाई कैंसल. सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 2 3 4, तो 25 बाय 1 2 3 4. सो 0.0025 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक ही ऑप्शन है. केवा नजीक नजीक ऑप्शन से भाई चपर. इज इंक्रीजिंग इफ, ओके ऑप्शंस वाइज जाना पड़ेगा. अगर x ग्रेटर देन 2 है तो दोनों पॉजिटिव मॉड्यूलस. चलो सो 2x माइनस 3. अब इसका डेरिवेशन करो. डेरिवेशन नो आंसर जो पॉजिटिव आवे तो इंक्रीजिंग, तो आई थिंक પહેલામાં જ આવી ગયું છે. ચલો પણ આમાં પણ કરી જોઈએ આપણે. ચારે ચાર ઓપ્શન્સ તમારે અત્યારે માટે તો શીખવાડવા બેઠો છું. अगर x लेस देन 1 है तो दोनों नेगेटिव आएंगे. क्यों? अबे दोनों नेगेटिव होंगे ना, x लेस देन 1 है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. चलो तो -2x प्लस 1, तो इसका डेरिवेशन करोगे तो -2 आएगा नेगेटिव. ये तो चलेगा ही नहीं. तो ऑप्शंस कदा लास्ट में हो तो बदा सॉल्व करवा पड़े ना. तो पहला में आंसर आ गयो है. अगर x नेगेटिव है तो भी सेम ही आएगा, यही वाला पैटर्न. अगर x लेस देन माइनस, तो अबे कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो आ जाओ से सेम. सो यानी कि फर्स्ट में आंसर आ गया. अगर मैं ये सब चेंज करूँ, ठीक है, अगर 1 to 2 में करना है तो चलो एक ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, 1 to 2 वाला है तो અત્યારે બધી પોસિબિલિટીઝ માં ભણાવું છું. તો 1 to 2 માં છે તો x - 1 पॉजिटिव, -x + 2. ओ इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि 1 to 2 में ऑलवेज इंक्रीजिंग ही आएगा, इसलिए वो वाला ऑप्शन ही नहीं है. हाँ. चलो सो फाइनल आंसर इज ए. पढ़ो 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 पढ़ो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, हुज रेडियस इज इक्वल्स टू इट्स हाइट. क्या? फिर से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. पहले तो क्या है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, बोले तो गिल्डर. हुज रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट. अभी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू आर चाहिए तो पाई आर क्यूब. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी dv बाई डी आर. सो 3r स्क्वायर, तो 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया ऑफ बेस हुआ तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस. ओके बढ़िया. द रेट ऑफ इंक्रीमेंट यानी कि dx, इंक्रीमेंट इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ x, यानी कि सम बनाने वाले ने मस्त बनाया भाई. df बाई डी टी इज ट्वाइस x dx बाई डी टी. आવું થશે. ये जो स्टेटमेंट है ने, आ स्टेटमेंट तमारू आવું बनावे छे. df बाई डी टी એટલે કે ફંક્શનનું તમે રેટ फाइंड करो तो 2 टाइम्स dx बाई डी टी થશે. यस, तो फाइंड फॉर x यानी कि x ની વેલ્યુ फाइंड करवानी છે. चलो सो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 कम्बाइंड dx बाई डी टी. તમે એવું કહેશો સર આ શું છે? અલ્યા ભાઈ તમે अलग अलग તમે आप लोग फाइंड करोगे तो 3x करोगा फिर x का dx बाई डी टी आएगा, इसमें भी dx बाई डी टी, इसमें भी dx बाई डी टी, तो सबको कॉमन निकाल लो, वही तो करना है. इसलिए तो dx बाई डी टी के साथ कंपैरिजन करोगे तो डिलीट हो जाएगा यार. सो नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए ये वाले, ये रूट्स होंगे तो इसका सॉल्यूशन ही लाना है बस, कुछ भी नहीं है. 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9. सो 9x माइनस एक्स प्लस 3, पैर बनाओ, 3x कॉमन, x माइनस 3 -1 कॉमन, x माइनस 3. सो x माइनस 3 एक फैक्टर है और 3x माइनस 1 एक फैक्टर है. सो x इक्वल्स टू 3 and 1/3, दोनों पॉजिटिव है यानी कि ऑप्शन नंबर बी.
બરાબર છે? ચલો, ધ લોકલ મિનિમમ વેલ્યુ ઓફ એક્સ અપોન લોગ એક્સ. Derivation log x whole square. Log x it is 1 minus x it is as it is 1 by x. Quotient rule. So log x minus 1 upon log x whole square. अपने को तो क्या चाहिए भाई? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए. तो क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज ऊपर वाले का ही जीरो होता है. हाँ, सो log x बहुत मस्त समझा. सो log x इक्वल्स टू 1. अभी 1 बोले तो मैं 1 की जगह पे e लिख सकता हूँ क्योंकि बेस e है. तो x इक्वल्स टू इज द क्रिटिकल पॉइंट. अभी मिनिमम वैल्यू तो एक ज आवशे, तो वैल्यू ही पूछा है तो डायरेक्ट e अपॉन लॉग e. तो डायरेक्ट ही आंसर इजी. अगर आपको बोले चलो कि तमने आ चेक करवू है तो आनु डबल डेरिवेशन लेवू पड़े बेटा. log x इसका डबल डेरिवेशन वैल्यू लेना ही पड़ेगा. देख log x रेज टू 4. सो log x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स माइनस, सिर्फ चेकिंग करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं, log x माइनस 1 इंटू 2 log x इंटू 1 बाई एक्स. ओके, હવે તમે e નાખો. જો આ પોર્શન 0 થઈ જશે. ખતમ. આમાં જ નાખવાનું. તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ है तो મિનિમમ है तो डायरेक्ट ई वैल्यू पुट करो तो ई अपॉन लॉग ई. तो आंसर इजी છે. કંઈ પ્રોબ્લેમ? એક જ વેલ્યુ આવે ને ત્યારે બહુ ઇશ્યુ નથી, કારણ કે તમારે ઓપ્શન્સમાં પછી એ રીતે સેટ થઈ જશે. डेरिवेशन. चलो 2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब. तो 2 प्लस 32 एक्स क्यूब. चलो डबल डेरिवेशन पछी विचारिए. फर्स्ट डेरिवेशन को 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट लाओ. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है हमें. तो 2x इक्वल्स टू 16 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8. हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 2. एक ही पॉइंट आया. यस. वैसे तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि x 0 नहीं है, इसलिए हम ले सकते हैं. अगर फिर नहीं तो लोचा हो सकता है. ओके, चलो x इक्वल्स टू 2 છે, નાખો આમાં. સો ઓલવેઝ પોઝિટિવ, यानी कि मिनिमम वैल्यू ही देगा. હવે મિનિમમ પોઈન્ટ પૂછ્યો છે કે વેલ્યુ છે? તો વેલ્યુ છે, તો x इक्वल्स टू 2 इसमें डालो. सो 2 स्क्वायर प्लस 16 बाई 2 यानी 4 प्लस 8, दैट इज द आंसर, प्लस 12. ओके, चलो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक अभी किया था, वही वाला सम, वो सेक वाला किया था ट्राई. पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 में ही चेक करना है भाई. चलो फर्स्ट डेरिवेशन माइनस कॉसेक कॉट. चलो फर्स्ट डेरिवेशन 0 करो तो कॉसेक 0 या तो कॉट 0. अभी ये साला 0 कभी भी हो सकता है. पाई बाई 6 थी पाई बाई 3 की बात करूँ छू, नहीं. कॉट 0 हो सकता है, नहीं. तो फिर तो एब्सोल्यूट से ही चेक करना है. डायरेक्ट कॉसेक पाई बाई 6 पुट करो, सो दैट इज 2. कॉसेक पाई बाई 3 पुट करो, यानी कि √3 बाई 2 का उल्टा 2 बाई √3. इन दोनों में बड़ा कौन है भाई? 2 बड़ा या 2 बाई √3 बड़ा? मैक्सिमम पूछा है. चलो 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 कैलकुलेटर से करो. 2 अपॉन 1.7 समथिंग, 20 बाय 17. यस, 71 सा 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ये 2 है तो ऑब्वियसली पाई बाई 6 के ऊपर ही वैल्यू आएगी. ओ सॉरी, पाई बाई 6 पॉइंट है मेरा भाई और बहनों. 2 आंसर आएगा. मैक्सिमम वैल्यू पूछू है, पॉइंट पूछू है तो पाई बाई 6 आवे. चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया स्फीयर स्टैंडर्ड 10 with respect to radius. Okay, ds by dr 4 pi 2r. तो डायामीटर पूछा है, 2r यानी डायामीटर, तो 4 पाई इंटू डायामीटर आएगा. 4 पाई इंटू डायामीटर. ओके, बराबर है. ऑप्शंसनी हिसाबથી આપણે કામ કરવાનું છે. ધ સાइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपांड्स. चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं.
है, कहाँ गया ट्राइंगल, कहाँ गया रे, इसमें है। चलो एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा लेकिन ट्राई करते हैं। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। अभी क्या पूछा है, द इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्सपांड्स एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर साइड। तो साइड यानी कि साइड है एक्स ही ले लेता हूँ, dx/dt इज गिवन √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हेन द साइड इज 12 सेंटीमीटर, ओके, कोई एक जगह पे साइड रुक जाती है ऐसे मान लो, वही टाइम पे व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। फिगर की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो dA/dt √3/4 2x। हाँ आ फॉर्म्युला आवड़वी જોઈએ ભાઈ, 10th 11 में ભણી ગયા છે। ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ એરિયા ઇઝ √3/4 સાઇડ સ્ક્વેર। સો √3/2 x कितना है साइड 12 एंड dx/dt कितना है √3। चलो सो 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मिनिमम वैल्यू, चलो डेरिवेशन x/x प्लस log x यानी कि 1 प्लस log x। डबल डेरिवेशन यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लो, इसको 0 करो तो log x इक्वल्स टू -1, लेकिन हम ऐसे रखते हैं log x इक्वल्स टू log e⁻⁻1 यानी कि e⁻⁻1 यानी 1/e। अभी कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव ही आएगा यानी कि मिनिमम ही देगा, ये वैल्यू डालो तो। सो मिनिमम ही चाहिए तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू 1/e डालो इसमें। चलो तो 1/e log e⁻⁻1, तो -1/e इज दी ऑप्शन। ओ माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस लेके चल जाते हैं। नहीं है ना मिनिमम वैल्यू। हाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो फिर 1/e आएगा। दोनों तरीके से अगर ऑप्शंस में माइनस कर दूं तो फिर मिनिमम वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू पूछे तो 1/e, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं वो लोग। द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल कैसा होता है स्फीयर, सो dV/dt ऑफ स्फीयर 4πcc, cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर। द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस, द रेट ऑफ रेडियस वो तो फाइंड करना है। व्हेन द वॉल्यूम इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके, तो v 4/3 पाई r क्यूब dV/dt 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr/dt, 3 कट। अभी v मुझे मिला हुआ है लेकिन रेडियस नहीं है मेरे पास, इसलिए तो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 4/3 अलग से रेडियस फाइंड करो। चलो 288 पाई, इसलिए तो भाई दिया हुआ है, ट्रिकी सम है। सो r क्यूब 3 इंटू 288/4, तो 3 इंटू 72, तो r क्यूब इक्वल्स टू 72 216 यानी r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो डालो इसमें 4 पाई 6 6 36। ओके माय डियर फ्रेंड्स, dr/dt तो है नहीं, वो तो फाइंड करना है। वॉल्यूम है वो है 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल, तो 1/36 आएगा। अरे बाप रे मस्त समय, आर फाइंड ना कर दो आंसर नहीं आवे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy, ओके, यानी कि फंक्शन है
व्हेन द कंडीशन इज गिवन, तो x की जगह पे मैं 8 - 2y पुट करूं, यानी कि फंक्शन आपका y के हिसाब में आ गया। तो बस, तो अभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। चलो सिंप्लीफाई, 8y - 2y², આવી રીતે થવું જોઈએ। चलो डेरिवेशन 8 - 4y, डबल डेरिवेशन, ओ कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आए ऑलवेज मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दो। 4y = 8, y = 2, y 2 है भाई, y 2 है, तो x कितना आएगा 8 - 2y, सो 4, तो x × y पूछा है, तो 4 2 = 8। डन डन डना डन। મજા આવે છે? થાકી તો નથી ગયા ને? લગભગ 40 ક્વેશ્ચન્સ લીધા છે, બહુ નથી લીધા, પણ એ 40 ક્વેશ્ચન્સ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વેશ્ચન્સ છે। ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વોલ્યુમ ઓફ સ્ફિયર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સરફેસ એરિયા, અરે બાપ રે, ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ સ્ફિયર વિથ રિસ્पेक्ट टू सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 cm², ये फाइंड करना है। तो इसको ऐसे करो, dv/dr अपॉन ds/dr, ऐसे कर दे। सो वॉल्यूम 4π3πr³ एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4π², दोनों का डिफ्रेंशिएशन करे છે ને સમ ભાઈ, જેવો તેવો નથી યાર। सो 4/3π × 3r² विथ रिस्पेक्ट टू r ज करो छो એટલે ચાલે। 4π यानी 8πr, हाँ इन दोनों का डेरिवेशन ही पुट किया मैंने। पाई कैंसल, 3 3 कैंसल, एक r कैंसल, सो r/2 इज दी आंसर। लेकिन r की वैल्यू उन लोगों ने दी हुई है, कितना, r इज 2 cm, तो 1, तो 1 1 1 1 1 1 वाला एक ही ऑप्शन है। ये cm3/cm², ये क्या है, ये वॉल्यूम, ये रेडियस, सरफेस एरिया, એટલે cm3/cm², यूनिट भी ये बात है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x, ये तो एकदम इजी वाला सम। चल भाई, sin x × cos x कुछ नहीं करना है, 2 × 2 डिवाइड 1/2 sin 2x। अभी इसका हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना है y बिलोंग्स टू r में। तो बाय -1 to 1 sin 2x का -1 to 1, दोनों सभी को 1/√2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। सो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो 1/2 इज द ऑप्शन। एयर कम्स आउट ऑफ द स्फीयर स्फेरिकल बलून एट द रेट ऑफ समथिंग, ओके, व्हेन इट्स रेडियस इज 1 मीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है ना भाई cm³ होगा, क्योंकि एयर निकल रही है तो वॉल्यूम ही निकल रही है ना। पेट बड़ा हो रहा है, पेट छोटा हो रहा है, तो वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम छोटा होएगा। ओके, सो dv/dt इज गिवन। स्फीयर वाला बहुत सम आया यार। अभी यहाँ पे एक झोलझाल क्या है पता है, रेडियस आपको 1 मीटर दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट ना करो तो आंसर बदल जाएगा। द रेट ऑफ चेंज, सिंपल है, सिंपल है भाई, कर सकते हो, कि मेरी ज़रूरत है 4/3πr³। अभी डायरेक्ट करो यार, 4πr² × dr/dt, बहुत बार आ चुका है यार, 3 3 कैंसिल हो ही जा रहा है। सो 5, 4π वैसे का वैसे रखो, r², ओहो हो, इसका स्क्वायर यानी 100 × 100, सभी आंसर सेंटीमीटर्स में ही है। dr/dt वो तो फाइंड करना है। ओके गाइस, सो dr/dt 5/4π × 1 2 3 4, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, 5/4π 5/4π, एक ही तो ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ समथिंग, ओके, the side of equilateral triangle increases at the rate of something, the rate of change of its area is dash when the length of side is, यानी कि dx/dt is given। आगे आया था ऐसा ही सम, लेकिन थोड़ा अलग था। ये ऐसा फाइंड करना, अरे यही तो सम है, अभी तो किया था, वही वाला सम है। आई थिंक रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, वही है, आई थिंक यही है।
देख लेते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है। यही है, ओके। उसमें साइड 12 सेंटीमीटर थी, इसमें 10 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, सो √3/4 साइड स्क्वायर, सो dA/dt √3/4 2x इंटू dx/dt। चलो x की जगह पे क्या रखना है हमें, 10, dx/dt इज √3, so 5 3s are 15 is the answer. Strictly decreasing, strictly increasing, constant, non-empty can be said. Sec square x minus 1 con f dash x. Sec square x minus 1 क्या, 10 स्क्वायर। अभी ये तो कोई भी करो भाई, पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बहुत ही बढ़िया सम, बहुत ही बढ़िया सम। हाँ, पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो। चलो सिंप्लीफाई करके देखते कुछ आता है कि नहीं। sin 2x इंटू कॉस 2x, एक वस्तु करिए 1/2, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो क्या होगा इससे सर, 2 sin cos, यानी कि 1/2 sin 4x। આટલું રાખો, હવે કંઈ નહીં કરવું, કોમન નથી કાઢવું, કશું જ નથી કરવું। સો ફર્સ્ટ ડેરિવેશન, ચલો, સો 2 cos 2x પ્લસ 4/2 cos 4x, યસ। સો 2 cos 2x प्लस 2 cos 4x, ओके। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 2/2 1/2 sin 4x, 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड दिस इज रेडी 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 रेडी। डबल डेरिवेशन फाइंड करके लिखो, चलो। सो -4 sin 2x, 2 2 4 एंड -8 sin 4x। चलो स्टोर करके रखो। अभी इसको काम करना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट लाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेशन 0, फर्स्ट डेरिवेशन 0, क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए वैल्यू है अभी, तो कैसे करेंगे? हाँ, cos 4x है भाई, 2 कॉमन निकालो तो cos 4x प्लस cos 2x। अरे ये तो पैटर्न आ गई भाई, 2 cos cos प्लस cos, 2 cos cos, 1 टाइम एडिशन बाई 2 एंड subtraction by 2, yes। so cos 3x equals to 0 and cos x equals to 0। હવે આપણે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં જ વિચારો, બહુ મસ્ત સમ છે, થોડોક લાંબો છે બટ સમજવાનો છે। 3x भी π/2 लेते हैं हम, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और x भी π/2 लेते हैं। सो x यहाँ पे π/6 और x π/2। चलो अभी डबल डेरिवेशन में डालो कि f डैश π/2 नाखू छू। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सारा जीरो आ गया भाई डबल डेरिवेशन में, और इसमें डाल रहा हूँ तो नेगेटिव 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 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल ही रही है इसमें। तो इसका क्या करे भाई, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करे, चेक करे, लेकिन कोई इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। ये चेक कर से आप π/2 भी डालोगे फिर भी आप कुछ आएगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे भी आप π/2 डालो तो ये 0 हो जा रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करो। हाँ 0 आ रहा है तो कोई ऑप्शन 0 वाला तो है ही नहीं, तो ये चेक ही नहीं करना है, सीधा π/6 लेके चेक कर लो। चलो, सो साइन 2 टाइम्स π/6 यानी π/3, 1 प्लस cos π/3, सो 1/2, ओ सॉरी √3/2 इंटू 1 प्लस 1/2, सो √3/2 इंटू 3/2, 3√3/4। वाह क्या ऑप्शंस बनाए, मस्त। चलो आगे। हाँ, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसको हम ऐसे ही लिखे ना भाई। सो f डैश x क्या होगा, 3 - x log 3 इंटू -1। आ पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, सो ऑलवेज 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 डिक्रीजिंग ही आएगा, कोई भी x ले जो, क्योंकि ये नेगेटिव है,
ये तो पॉजिटिव रहेगा भाई, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल तो नेगेटिव हुआ। चलो ये स्क्वायर है, अभी लाइन बनाओ डायगोनल, ये डायगोनल है। चलो इसको कुछ ले लेते हम, साइड एक्स एंड डायगोनल वाई, ठीक है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि dy बाय dt આપ્યું છે સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ, એટલે કે 1/2 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ ઇઝ ધી આન્સર. Then dash is the rate of change of area is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी एरिया 400 है, यानी कि एक्स स्क्वायर 400, तो एक्स 20 आ गया कोई एक टाइम पे, तो dA बाई dt फाइंड करनी है। तो एरियानी फॉर्म्यूला एक्स स्क्वायर છે, समझो, ओके। तो y चाहिए, y की फॉर्मेट में कर दो पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यस। सो वाई स्क्वायर बाई 2 dA बाई dt 2y बाई 2 dy बाई dt। अभी y कितना मेरे भाई, y कितना है, हाँ तो x 20 है, x 20 है, तो y लाना है ना भाई, y तो लाना है, हाँ। तो x 20 છે એટલે 400 इंटू 800 એટલે y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 400, सो y 20√2 होगा, तो आमથી આમ છે भाई। चलो 20√2 इंटू 1/2, तो 10√2 इज दी आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शंस तो ठीक है, बट डायगोनल અને સાઈડનું કોમ્બિનેશન્સ છે, બહુ જ જોરદાર સમ છે, एकदम बढ़िया सम। हाँ चलो थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री आता है ना जब कभी भी, तो सब हलबला जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं सही कई लोग, पर एकदम शांति करो। जो 4 sin क्यूब इंटू कॉस एक्स, एकदम शांति करो, भले थोड़ा टाइम लागे, बट 4 cos क्यूब इंटू माइनस साइन। चलो सो क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 4 sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ओ ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकलશે ને, हमें यार सर स्क्वायर કેવી રીતે લીધો। सो 2 इंटू 2 इसका भी हो रहा है, अरे वाह, एंड कॉस 2x, क्यों भाई, माइनस निकलेगा, सो अगेन साइन 2x इंटू कॉस 2x, सो माइनस 4 साइन 4x। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना सा सिंप्लीफिकेशन हुआ। अभी उसने इंक्रीजिंग मोड पूछा है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव चाहिए, सो माइनस साइन 4x पॉजिटिव, पर हूँ एम कहूँ तमने साइन 4x ऑलवेज नेगेटिव, यस आ रूल आवड़ो જોઈએ, माइनस साइन 4x पॉजिटिव चाहिए तो साइन 4x पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। अभी चेक करते हैं 1 बाय 1 ऑप्शंस के साथ, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। चलो फर्स्ट ऑप्शन, अभी साइन 4x साइन फंक्शन कब नेगेटिव आता है, या तो थर्ड क्वाड्रंट या तो फोर्थ क्वाड्रंट। चलो सो ए ऑप्शन। हाँ હવે આ જે બધા રેન્જ છે ને પહેલા એ एक्सની रेंज है बेटा, दिस इज नॉट 4x की रेंज, तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 4x 2 पाई, नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रंट है। चलो बी ऑप्शन, π/2 to π/8 આવી રીતે જ જવાય યાર, MCQs છે। चलो 4 मल्टीप्लाई यानी 2 पाई, हाँ 4 मल्टीप्लाई है ना, हाँ 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई से 5 π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रंट हुआ, नहीं भाई। चलो सी ऑप्शंस, π/4 to π/2,
चलो 4 मल्टीप्लाई पाई टू 2 पाई। हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है भाई, थोड़ा बहुत आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो डी ऑप्शन 5/8 टू 3 पाई बाई 4। चलो 4 मल्टीप्लाई 5/2 टू सभी में 4 मल्टीप्लाई 3 पाई, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। 5 पाई बाई 2 टू 3 पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सभी को 4 मल्टीप्लाई करना है। हाँ भाई, सो ये भी नहीं है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो एक यही ऑप्शन है। हो गया π/4 टू π/2। डन, दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑप्शन इज द आंसर। क्योंकि मुझे क्या चाहिए समझो, साइन 4x नेगेटिव जो है, तो साइन 4x नेगेटिव क्या रहा है, साइन क्या रहा नेगेटिव है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसे ही सेट किया है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पाई से 5 पाई/2, 5 पाई/2 यानी यहाँ पे आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ये आएगा, ये नहीं आएगा। डन। ट्रिग्नोमेट्री आवे એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, ઓપ્શન્સ વાઇઝ સેટ કરો, કંઈક તો તમને મળશે। ઓકે, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अरे यार ये a है ये b है, तो a इक्वल्स टू -1 b इक्वल्स टू 3, तो a² + b² करो ना भैया स्क्वायर रूट। सो 1 + 3 4 का आंसर 2, प्लस और -2 आएगा, यानी कि मैक्सिमम 2 मिनिमम -2। ओह खत्म। आई थिंक कितने हुए सम्स, 43 सम्स। आई थिंक मोर देन 1 आवर का टाइम लिया मैंने, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया है। मज़ा आ गया कि नहीं આવી, મજા આવી કે નહીં? સો ફરીથી રિકોલ કરો, અમુક કન્સેપ્ટ્સ બધા બહુ સારા सम्स છે, થોડાક લાંબા પણ सम्स થયા પણ છે નો ડાઉટ, પણ એવું જરૂર નથી કે આવા सम्स પૂછાય, બટ એક તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે, આ મારો પર્પઝ છે। પછી હવે કયું પૂછાય કયું ના પૂછાય, જે પૂછાય તમે ક્રેક કરી શકશો। ओके, तो कुछ भी आएगा आप लोग 4 डालोगे, दैट इज़ माई बेस्ट पर्पज़। सो चलते नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आओ जो।